So after those 2 hours, you sit down and analyze in order to learn the right kind of lessons. आपकी एक ability है preparation के through build की हुई. Do not try to go beyond that ability. हर एक question को सही करने के लिए there are times when you require some knowledge. Or maybe you need some skill, you need some technique, you need some tactic to help you eliminate. मैंने एक इंटरव्यू देखा था कपिल देव का कई साल पहले. यार पता है क्या हुआ, उसमें इंटरव्यूअर ने कपिल देव से पूछा कि सर आप तो मैच में कभी नो बॉल नहीं करते, बाकी हमने कई बॉलर्स को देखा है बॉल नो बॉल करते हुए. वेलकम टू एमबीए वाला. माय नेम इज विक्रांत. आई एम योर पर्सनल कोच फॉर ऑल थिंग्स रिलेटेड टू English, communication, psychological aspects, and in this video we are going to talk about something special. So if you are preparing for the CAT exam but you've not been writing the mocks, then I hope that this test will change the way you look at the mocks and hopefully help you elevate, level up your scores. And in case you are somebody who's writing the mocks and you have questions about how many and how to approach them and how to analyze them, this session will bring in all that information for you. So let's get started. Why do we even write mocks? So I believe that writing a mock is basically like standing in front of a mirror. So you notice whenever we prepare for a party, you don't require a mirror all the time. You know, I want to put on a tie. I can loop it. I can knot it even before I actually stand in front of a mirror. But then the thing is, once I'm done with looping it, once I finally make this knot, now I need to figure out, is the knot right? Is the knot right at the center? Is there something that requires improvement? Well, those kind of things, well, they can only be done when you stand in front of a mirror. So you don't really need mocks to start your preparation, but once your preparation begins, once it starts reaching those final stages, that is where writing mocks can help you reach the next level. सो जब आप मॉक देंगे तो आपको पता चलेगा यार कहाँ चीजें ठीक चल रही हैं, कहाँ चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, कहाँ और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, गुंजाइश है. ऑल दोज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू आउट immensely. In fact, I at times jokingly say that writing the mocks at physics wala is like basically roasting yourself before the CAT. है ना, वो एग्जाम मॉक आएगा आगे करेगा रोस्ट. तुम देखोगे अरे भगवान मार्क्स नहीं आ रहे, परसेंटाइल नहीं आ रहे. So that roast will give you that necessary fire, that necessary impetus, energy to go ahead and take things a little more seriously, work harder, and those things will eventually help you a lot. क्योंकि otherwise ना हमें लगने लग जाता है कि यार बस सिलेबस करना है, सिलेबस कर लिया तो कैट तो हो ही जाएगा. बट कैट इज अ फियर्स बैटल. हाँ. And as we say about these battles, remember, the more you sweat in practice, the less you bleed in battle. So you need to sweat more. And that can happen only through mocks. क्योंकि देखो syllabus एक part है, but then you also need to master the art of time management. You need to master the ability to deal with pressure. You need to master the sense of taking those split second decisions in the examination hall. तो बहुत सारी और चीजें हैं. हाँ, टेस्ट टेकिंग स्टैमिना डेवलप करना है, स्ट्रैटेजी को फाइन ट्यून करना है. दोज थिंग्स कैन नॉट हैपन अनलेस you've gone on to write the mocks. So if you are somebody who is not attempting mocks, or you thinking that, oh, I can leave them for later, not really. Dude, when it comes to the CAT exam, no mock, no glory, and therefore it is imperative, absolutely necessary, critical that you go on to write the mocks. So now there is a very obvious question that you may have, that when should I start writing the mocks? अभी मैंने बोला कि यार leaving them for later can actually be too late. तो कब शुरू करना चाहिए? So ideally you would want to begin writing the mocks once you've taken care of around 70% of the CAT preparation syllabus. बहुत सारे लोग वेट करते हैं कि यार मैं ना पहले सिलेबस करूंगा, फिर सिलेबस को रिवाइज करूंगा, फिर मैं उसके बाद जाकर के मॉक्स देना
शुरू करूंगा. But then that can make them too late. These people are perfectionists, and what they don't realize is that the true mastery can never happen without testing, without pitting yourself against something that is designed to test you. तो पूरा सिलेबस होने की, रिवीजन की कोई वेट करने की जरूरत नहीं है. Once you are done with 70% of the syllabus, you can start. For that matter, you can actually start even sooner, यार. ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, बस ये है कि इससे कम टाइम पे जब आप देना शुरू करते हैं ना, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि स्कोर्स अच्छे नहीं आते, परसेंटाइल्स बहुत बढ़िया नहीं आते. और हम में से बहुत सारे लोगों के साथ है एक प्रॉब्लम. हम ना स्कोर्स को वो अच्छा बुरा जो बोलना शुरू कर देते हैं ना, वो इमोशनल लैंग्वेज, दैट्स अ प्रॉब्लम. स्कोर्स आर लो और हाई, राइट? सो इफ यू कैन डील विद लो स्कोर्स विदाउट गेटिंग डीमोटिवेटेड, you can actually write it sooner as well. Okay, हाँ, तो अब देने शुरू तो कर दिए, बट अब जब भी मॉक दें, हाउ डू यू गो ऑन टू गेट द बेस्ट फ्रॉम योर मॉक्स? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक बहुत सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, एंड दैट इज यू नीड टू एनालाइज एवरी मॉक थरली. सो सिर्फ मॉक देना नहीं है. तो आप ये नहीं सोचेंगे कि अच्छा ये 2 घंटे हैं, 2 घंटे में मॉक दे दिया एंड आई एम डन. नॉट रियली. द डे यू राइट द मॉक, यू एक्चुअली ब्लॉक 6 to 8 hours of work on that particular day. So after those 2 hours, you sit down and analyze in order to learn the right kind of lessons that will help you improve. So at this juncture, you may have this question that, okay, how exactly do I analyze the mocks? So let me take you through a few steps that will help you reach there. So there is a very foundational step. I'm not even calling it step 1. Let's call it step 0. And that is, treat your mocks as if they were an actual exam. मैंने एक इंटरव्यू देखा था कपिल देव का कई साल पहले, when I was young, probably in my, I think, middle school. देखा भी नहीं था, पढ़ा था. तो यार पता है क्या हुआ? उसमें इंटरव्यूअर ने कपिल देव से पूछा कि सर, आप तो मैच में कभी नो बॉल नहीं करते, बाकी हमने कई बॉलर्स को देखा है नो बॉल करते हुए. व्हाई इज इट दैट यू डू नॉट fall into this trap? So Kapil Dev said that, see, whenever I practice in nets, I never bowl a no ball there. I treat my nets as if it were an actual match. बहुत सारे और bowlers को मैंने देखा कि वो nets में थोड़ा अपनी ability से ज्यादा बाहर चले जाते हैं. उनको लगता है चलो nets ही हैं, no ball हो भी गई तो क्या, but that's how habits develop. तो बहुत सारे लोग मॉक्स को भी ना कैजुअली लेते हैं कि यार बैठे हैं, आराम से उठे हैं, नींद आ रही है, पेपर दिए जा रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं करना. ओके, सीरियसली लेना है और सीरियस रहते हुए इस एग्जाम को देना है. ट्रीट इट एज इफ इट वर एन एक्चुअल कैट. तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट टाइम लिमिट्स, उसके अंदर पूरा फोकस, अपनी बेस्ट एबिलिटी लगानी है. अब उसके बाद स्टेप 1 इज, in that exam, put your strategy to test and attempt all the questions that you can. अब इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. जब आप पेपर दें तो आपकी एक एबिलिटी है प्रिपरेशन के थ्रू बिल्ड की हुई. डू नॉट ट्राई टू गो बियॉन्ड दैट एबिलिटी. डू नॉट ट्राई टू आंसर एवरीथिंग. ओके, सो आपको लगता है कि आपकी करंट एबिलिटी, अब हमने अपना एक मॉक कहीं तैयार करके रखा हुआ है जो आप शायद देने वाले हैं. लेट अस से उस मॉक में there are these 24 questions in VARC, and out of these 24 questions, your current ability says that you can answer 9 of these questions correctly. तो अब जब आप ये पेपर करेंगे तो क्या होगा? 9 सवाल कर पाएंगे, है ना? अगर आप इससे ज्यादा करने की कोशिश करेंगे तो शायद ये 9 भी ना हो, गलत हो. सो प्रैक्टिस के दौरान हम अपनी एबिलिटी बिल्ड करते हैं. एक मॉक से दूसरे मॉक के बीच हम कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिससे बढ़ के 9 से 10, 10 से 11 हो जाए. बट हम पेपर जब देने बैठते हैं तो हमारे दिमाग में एक सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज होंगी कि यार मैं ना, कई बार हम स्ट्रैटेजीज के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं. दैट्स एब्सोल्युटली अप्रोप्रिएट. बट नॉर्मली एक्चुअल एग्जाम वाले दिन तक आइडिया ये है कि फिक्स्ड स्ट्रैटेजी लेके नहीं जाना, एक सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज लेकर के जाना है, ताकि जिस तरह का एग्जाम आए उस तरीके से अडाप्ट करके हम उसको दे पाए. सो वो दिमाग में 1 या 2 चीजें रखें बिगिनिंग के लिए. आई थिंक योर स्ट्रैटेजी शुड बी टू एंश्योर दैट यू आर एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस दैट यू हैव द एबिलिटी टू आंसर.
है ना? बहुत ऑब्वियस है ना, इजी क्वेश्चंस पहले करते हैं, फिर मॉडरेट, फिर उसके बाद डिफिकल्ट, और ये इजी मॉडरेट डिफिकल्ट बड़ा सब्जेक्टिव है। तो जो सवाल आपको आते हैं इस पेपर में वो आपके लिए इजी हैं, सो मेक श्योर दैट यू आर एबल टू स्कैन द एंटायर सेक्शन, रीड ऑल द क्वेश्चंस, और उसके बाद फिर आप जो जो आपको आते हैं क्वेश्चंस वो करते जाएं, बिना किसी अननेसेसरी ट्रैप में फंसे हुए। बहुत बार होगा कोई क्वेश्चन दिखा, आपको लगता है यार शायद हो जाएगा, एंड देन यू स्टार्ट पुटिंग इन दैट एफर्ट ऑन दैट, वो उस तरह की चीजें जो है दे एंड अप वेस्टिंग योर time. So focus on what you can answer. Then step 2, once the mock is over, attempt the leftover questions in 2 different phases. हाँ, तो भाई अब कुछ सवाल ऐसे होंगे ना जो आप नहीं कर पाए ड्यूरिंग द एग्जाम, और काफी सारे केसेस में ऐसा इसलिए होगा बिकॉज यू वुड फील दैट ओ आई रैन आउट ऑफ टाइम, अगर मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता तो हो जाता। तो अब इसमें 2 फेजेस में आपको जो भी सवाल बच गए थे वो 2 घंटे पूरे होने के बाद उनको करना है। फेज 1 टाइम्ड कंडीशंस में करेंगे, सेक्शन बाय सेक्शन। लेट्स से वीआरसी में आपके 10 क्वेश्चंस बचे, तो आप बोलेंगे अच्छा ठीक है, आई एम गोइंग टू गिव माई सेल्फ 25 मिनट्स नाउ, एंड आई विल ट्राई टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चन इन दीज 25 मिनट्स और 20 मिनट्स, वट एवर वर्क्स फॉर यू। हाँ, शुरुआत में आई टेंड टू बी लिटिल जनरस, ग्रेजुअली फिर वो स्पीड वाला एंगल जब आएगा तो आई विल पुट यू अराउंड 2 मिनट्स पर क्वेश्चन। तो इस 20 मिनट या 25 मिनट में जितने भी क्वेश्चंस हुए हुए बहुत बढ़िया। उसके बाद फेज 2 में अब कोई टाइम रिस्ट्रेन नहीं है, कोई टाइमर नहीं है, कोई क्लॉक नहीं है। अब जो बाकी के क्वेश्चंस बचे, जितना टाइम चाहिए हो रहे हैं तो उनको करो। उसके बाद भी ऑब्वियसली कई बार ऐसा होगा कि कुछ क्वेश्चंस बच जाएंगे, वो आपसे नहीं हो पाएंगे, एंड दैट्स एब्सोल्युटली ओके। ठीक, अब जब आपने सारे क्वेश्चंस टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी कर लिए तो फिर आपके पास आएगा आपका स्टेप 3, चेक दी आंसर्स। आंसर्स चेक करने हैं, सॉल्यूशंस नहीं चेक करने हैं। सी गेटिंग द ड्रिफ्ट? आंसर्स चेक करने, सॉल्यूशंस चेक नहीं करने हैं। आंसर्स जब आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार कुछ क्वेश्चंस आपने जो अटेम्प्ट किए वो गलत हुए, राइट? तो क्या करें? The ones that you got wrong, reattempt them. Try and see if you are able to figure out the right approach to that question all by yourself. वो करके फिर से आंसर चेक करो, अगर अभी भी गलत है तो फिर से अटेम्प्ट करो। तो अपनी तरफ से एटलीस्ट ये 2 राउंड्स चलाओ, ताकि जो अपना बेस्ट ऑफ द एबिलिटी, बेस्ट ऑफ नॉलेज यहां ला सकते थे वो आप ले आए। उसके बाद फिर स्टेप 4 हमारा क्या है? अब look at the solutions for those questions that you could not attempt and the ones that you could not get right. और इस समय पे जब आप ये करेंगे ना तो अपने आप से बेसिकली 2-3 चीजें पूछेंगे साथ में। एक तो बड़ी ऑब्वियस सी चीज कि यार was I using the बेस्ट अप्रोच, was I using the right kind of approach, सॉल्यूशन में क्या अप्रोच है, मेरी क्या अप्रोच थी वो। पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप हर एक क्वेश्चन को सही करने के लिए देयर आर टाइम्स व्हेन यू रिक्वायर सम नॉलेज, or maybe you need some skill, you need some technique, you need some tactic to help you eliminate close answer choices, whatever. At the end of the day, these are the handful of things that allow you to get a question right. तो आप पूछेंगे अपने आप से कि यार मैं ये जो क्वेश्चन नहीं कर पाया या गलत हुआ तो इज इट बिकॉज आई डू नॉट हैव दैट नॉलेज? क्योंकि देखिए मैंने आपको बोला ना 70% सिलेबस कंप्लीशन पे शुरू कर सकते हैं, तो हो सकता है वो क्वेश्चन बाकी के 30% वाले चीजों में से हो, राइट? तो अब वो ऑटोमेटिकली एक हमें फ्यूचर के लिए एक लेसन दिख रहा है ना कि अच्छा अगर मैं ये चैप्टर कर लूंगा तो मेरे सवाल होने लग जाएंगे। सो गोइंग थ्रू दैट चैप्टर विल होपफुली अलाउ यू टू अटेम्प्ट 1 or 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट मॉक, राइट? और इट कुड बी अ स्किल इशू। अब स्किल्स में क्या है कि स्किल्स में ना ये स्विच नहीं है, स्किल ऑन ऑफ नहीं होते, स्किल्स में लेवल्स होते हैं। सो लेट अस से यू हैव the skill to generate the overview of a passage, but वो skill बहुत ज्यादा well developed अभी नहीं है, हाँ शुरुआती स्टेज में ही है। तो अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपसे पैसेज का मेन आइडिया पूछ रहा है तो क्या होगा? आप उसको अभी हो सकता है अच्छे से ना कर पाए, हो सकता है उसमें ऑप्शंस आपको आज क्लोज लग रहे हों, जब जैसे जैसे वो स्किल बना ले तो वो क्लोज लगना बंद हो जाए। सो इफ यू नोटिस अ ट्रेंड कि यार कुछ वो स्किल वाली चीजों में बार बार मिस
कुछ गड़बड़ हो रही है तो स्किल पे थोड़ा आइसोलेशन में काम कर ले, टेक्निक नहीं आती, हाँ, सॉल्यूशन में कोई एक ऐसा मेथड बताया दैट यू वर नॉट इवन अवेयर ऑफ, कि ओ ये तो यार बड़ा स्ट्रीमलाइंड ऑब्वियस सा तरीका है सही आंसर तक आने का, तो उन चीजों को सीखें. सो दैट्स गोइंग टू बी योर स्टेप 4 इन दैट प्रोसेस ऑफ एनालिसिस. और इसी के साथ साथ अब ना एक बैठ करके असाइन योर लेवल ऑफ डिफिकल्टी टू ईच क्वेश्चन. सो एक तो होगा पेपर में हमने क्या बोला कि क्वेश्चन इजी है कि मॉडरेट है कि डिफिकल्ट है, या बाकी लोगों को क्या लगा, बट देन दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी वेरी सब्जेक्टिव. तो आपको ये नहीं देखना कि बाकियों को क्या लगा, आपको ये देखना है आपके हिसाब से क्वेश्चंस कैसे थे. उसके दो रीजंस हैं. पहला रीजन, अब when you attempt a mock you would obviously want to start with questions that are easy and move towards questions which are difficult. अब उसका चूंकि कोई यूनिवर्सल आंसर नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कौन से एरिया में आपका कंफर्ट लेवल ज्यादा है और कौन से एरिया में आपका कंफर्ट लेवल रिलेटिवली लो है. हाँ, फॉर एग्जाम्पल भाई, आई कुड बी समबडी हु इज रियली कंफर्टेबल विद मॉडर्न मैथ. आप मुझे प्रोबेबिलिटी दें, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दें, मुझे मजा आता है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. हाँ, हो सकता है आपको नहीं आता हो, तो मेरे लिए वो इजी है, आपके लिए वो डिफिकल्ट है. अगर मुझे मॉक में प्रोबेबिलिटी पीएनसी दिख रहा है तो मैं उसे प्रियोरिटाइज करूंगा. सिमिलरली हो सकता है आपको ज्योमेट्री अच्छी लगती हो, मुझे ना अच्छी लगती हो, मुझे ना आती हो, तो आप शायद ज्योमेट्री प्रियोरिटाइज करेंगे, मैं शायद ज्योमेट्री डिप्रियोरिटाइज करूंगा. तो एक तो वो स्ट्रैटेजी वाले एंगल में दिस इज समथिंग दैट हेल्प्स. और दूसरा इवन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अब जो चीजें आ ही गई, जो जो चीजें आपको आज इजी लग रही हैं, कंफर्टेबल लग रही हैं, अब उनको आप उठा करके साइड में रख सकते हैं, उन्हें मॉक्स में मिलते रहेंगे. लेकिन जो एरियाज अभी चैलेंजिंग लग रहे हैं, we need to work towards those areas, we need to put in some effort in order to ensure that we go on to become better at those areas. तो वो आगे वाले मॉक्स में फिर हमारी चीजें, हमारी जिंदगी हमारे को थोड़ा आसान बनाएंगे और हम बेहतर स्कोर्स कर पाएंगे, है ना. तो बस आराम से इजी लगा, मॉडरेट लगा, डिफिकल्ट लगा, लेबल कर दीजिएगा. फिर स्टेप 6, फॉर्मुलेट अ प्लान टू इंक्रीज योर स्कोर इन द नेक्स्ट मॉक. तो ये जो स्टेप्स अभी तक हमने किए उनसे आपको काफी सारी चीजें पता चलेंगी. क्या आपको पता चलेगा कि आपकी जो कॉम्पिटेंसीज है ना, आपकी नॉलेज, स्किल, टेक्निक कौन सी थी विच वॉज मिसिंग, विच प्रिवेंटेड यू फ्रॉम आंसरिंग सम ऑफ दीज क्वेश्चंस. हाँ, आपको ये भी पता चलेगा यार कौन से क्वेश्चन टाइप्स ऐसे हैं जो आपको मॉडरेट लग रहे हैं, डिफिकल्ट लग रहे हैं. सो नाउ दैट यू हैव दिस एंटायर सेट, यू कैन गो ऑन टू पिक अप 1 or 2 थिंग्स पर सेक्शन जो आप इस मॉक से लेके अगले मॉक के बीच में करेंगे. और उसके वजह से हो सकता है अगले मॉक में आप यू मे एंड अप गेटिंग 2 to 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस राइट. आप उसकी सर्टेनिटी बढ़ा पाएंगे, राइट. तो वो प्लान फिर आपको उस सारे लेसन से बनाना है कि अच्छा, अब मैं एक हफ्ते के बाद अगर अगला मॉक दे रहा हूं तो इस हफ्ते से अगले हफ्ते के बीच में मुझे वीएआरसी में किस चीज पे फोकस करना है. लेट्स से आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल विद इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस, तो मैं इस हफ्ते 10 घंटे दूंगा इन्फरेंस को मास्टर करने के लिए. हाँ, ऐसे ही डीआईएलआर में यू कैन पिकअप, आइडेंटिफाई सम पैटर्न एंड देन प्लान. ऐसे ही क्वांट में यू कैन पिकअप अ चैप्टर दैट यू नीड टू गो थ्रू और रिवाइज एंड देन यू कैन प्रोसीड. तो इन सब चीजों से आपका स्कोर अगले मॉक में बढ़ता जाएगा. उसके बाद फिर स्टेप 7 क्या है? रिपीट. भाई एक मॉक दिया था, उसमें ये सब सीखा, अब अगला मॉक देंगे और उसके बाद ये सारे का सारा प्रोसेस फिर से जाकर के हम रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे और उससे वी विल गो ऑन टू बिकम बेटर. तो हमें बहुत अच्छा एक रियलिटी चेक मिलता है, तो ये देने चाहिए. अब इसमें भी एक सवाल आता है कि सर कितनी बार प्रोसेस रिपीट करें. तो यार, और इन अदर वर्ड्स हाउ मेनी मॉक्स शुड यू गो ऑन टू राइट. तो एक जो नंबर है मेरे मन में वो क्या है कि यू नीड टू राइट एट लीस्ट 20 मॉक्स. 20 तो कम से कम देने ही देने हैं. अगर मैं देखूं पिछले सालों के सक्सेसफुल स्टूडेंट्स का, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स, हाँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आउटलायर्स, बट ज्यादातर स्टूडेंट्स ने they've given they've sat for somewhere between 25 to 35 मॉक्स. तो 20 तो जाना ही जाना है. शायद हम इससे और आगे भी जाना चाहें.
राइट? सो दैट्स व्हाट वी आर रियली ट्रूली आफ्टर। और इन सारे मॉक्स को दे करके ही इवेंचुअली आपको पता चलेगा कि आप जहां हैं आज वहां से टॉप स्कोर्स की तरफ बढ़ सकते हैं। यही वो मिरर है जो आपको वहां तक लेकर के जाएगा। सो mocks are not just tests, they are a rehearsal for your best performance. They are a very vital tool in this entire process. Okay, so make sure that you do write them, and once you start writing them, do get back to me and let me know how you approach this and how these lessons, these steps are working out for you. In case you're already writing the mocks, drop in the chat how many mocks you've written, and then we can go ahead and talk further. So let's work together using Physics Wala's mocks. Let's track our progress and crack the exam in the most efficient, most impactful way. And here is something that I want to leave you with. Knowing yourself is the beginning of all wisdom. And mocks, they help you know your preparation, and that's how you go on to become wiser and amazing. So take care, and I'll see you in the next one.